اپنی نصیحت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے کہ خداوند آج آپ سے کیا بات کرتا ہے. ہاللیلویا. خداوند آج آپ سے کیا بات کرتا ہے. اس سے پہلے کلام پاک کو بیان کیا جائے، ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب کہیں بھی کوئی میڈیسن لی جائے، کوئی بھی دوائی لی جائے، چاہے بخار کا بھی سیرپ کیوں نہ ہو، اس کے اوپر پیچھے لکھا جاتا ہے، کچھ ہدایات لکھی جاتی ہیں کہ تمام ادویات بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. اس کے تمام نقصانات بتائے جاتے ہیں اور فائدے بھی بتائے جاتے ہیں. ایسی بات ہے. اور ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ بڑی احتیاط سے استعمال کرتے ہیں. اور آج جس چیز کے تعلق سے ہم سیکھیں گے، ہم نے اس کلام پر، ان باتوں پر کیا کرنا ہے؟ بڑے احتیاط سے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. ہاللیلویا. بڑے اعتماد سے، بڑے دھیان سے اپنا پورا دل، اپنا پورا دھیان، فوکس کچھ ٹائم کے لیے ہم نے خدا کے کلام پاک کی طرف رکھنا ہے. ہاللیلویا. اور جب ہم اپنا دھیان، فوکس خدا کی طرف رکھیں گے تو خدا بھی کیا کرے گا؟ ہمیں برکت دے گا. جس طرح میڈیسن کے اوپر پیچھے لکھا جاتا ہے ہدایات، بائبل میں سے بھی آج ہم کچھ ہدایات کے تعلق سے سیکھیں گے، کچھ پوائنٹ کے تعلق سے ہم سیکھیں گے کہ خداوند آج آپ سے کیا بات کرتا ہے. اسپیشلی ان کے لیے ہے کہ جو بڑے پریشان ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری اس بیماری کا، میری اس پرابلم کا، میرے خاندان کے اندر یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ آفت ہے، اس کا اب تک حل ہی نہیں مل پایا. تو خداوند کا کلام پاک آج ان کو ایک حل بتاتا ہے. جس طرح کوئی پریشان ہوتا ہے، کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس جا، میرے گھر میں بھی یہ پرابلم تھی، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو اسی طرح آج آپ کو ایک حل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، جو آپ سنیں گے، جو آپ سیکھیں گے، اور اگر آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکل کریں گے، اپنائیں گے، تو آپ 100%، 100% آپ برکت کو ریسیو کریں گے. آمین بول سکتے ہیں؟ آمین. جب آپ کے لیے کوئی اچھی بات کی جائے، جو سمجھیں یہ بات میرے لیے ہے، تو آپ آمین بول سکتے ہیں. ہاللیلویا. اور یہ بات ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں خدا میری دعا کا جواب نہیں دیتا، پر میں اس بات سے خداوند آج آپ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو نے پریشان نہیں ہونا، میں تجھے حل بتاتا ہوں. جو بات خدا نے میرے ساتھ کی، جو مجھے حل بتایا، سب سے پہلے جو بھی کلام پاک بیان کیا جاتا ہے، سب سے پہلے وہ میرے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد میرے خاندان کے لیے ہوتا ہے، اور پھر خدا مجھے دیتا ہے کہ تو کیا کر، اسے اپنی کلیسیا کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر شیئر کر، اور انہیں بتا، میں چاہتا ہوں کہ جو تیری کلیسیا ہے، تیرے لوگ ہیں، یہ کیا ہو؟ بابرکت ہو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جو لوگ یہ پریشان ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا کا جواب نہیں ملتا، اور جو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، مضمون ہے، وہ بھی یہ ہے، کیوں ہماری دعا کا جواب نہیں ملتا. آج ہم کیا سیکھیں گے؟ کیوں ہماری دعا کا جواب نہیں ملتا. ایک دوسرے سے بات کیجیے، بہنیں بہنیں سے کہیں، بھائی بھائی سے کہیں، ایک دوسرے ہاتھ پر آ کر ہاللیلویا، تاکہ آپ کے چہروں کے اوپر جو ناراضگی وہ بھی جائے. کیوں ہماری دعا کا جواب نہیں ملتا. ہاللیلویا. اور آئیے ہم دیکھیں گے، اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کس جگہ پر جانا پڑے گا؟ ہمیں بائبل مقدس کے اندر جانا پڑے گا. ہاللیلویا. میرے ساتھ آپ کی بات بلند ہونی چاہیے. ہاللیلویا. اور بائبل مقدس کے اندر آج ہم سیکھیں گے کہ کیوں ہماری دعا کا جواب نہیں ملتا. سو جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں. زبور 66 اور اس کی 18 آیت میں سے ہم تلاوت کریں گے، اور میں درخواست کروں گا سسٹر سویرا کو مائک دیا جائے. آپ نے بڑے غور سے سنا ہے اس آیت کو. خدا کے کلام پاک میں کچھ یوں مرکوم ہے، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. آمین. آمین. خدا کے کلام پاک میں کیا لکھا ہے؟ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. ہاللیلویا. اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا
تو خدا میری نہ سنتا. اس کا حل ہمیں مل گیا ہے کہ اگر ہم اپنے بدن میں, اپنے دل میں, اپنے جسم میں اگر ہم بدی رکھتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, تو کیا ہے, ہم کیا ہو سکتا ہے, ہمیں دعا کا جواب, ہمیں آنسر نہیں مل سکتا. ہاللیلویا. ہو سکتا ہے کہ آپ سارا سال چرچ جاتے ہو, کوئی سنڈے مس نہ کرتے ہو سکتا ہے کوئی بدھ بھی مس نہ کرتے ہو سکتا ہے آپ روزے آنے والے ہیں, آپ روزے بھی رکھتے ہو سکتا ہے آپ آفرنگ بھی دیتے ہو, ہدیہ بھی دیتے ہو, آپ شکر گزاری بھی کرتے ہو سکتا ہے جس طرح یکم آج آ گئی ہے, سیلری لے کر کچھ نہ کچھ چیز بانٹ بھی دیں, پر اگر ہماری دعا کا جواب پھر بھی نہیں مل رہا, سالوں سال ہم آ رہے ہیں اپنے بچے کے پریئر ریکویسٹ کو لے کر آ رہے ہیں, خدا میرا یہ بچہ ہے, اس کو گورنمنٹ جاب نہیں مل رہی, یہ میری بیٹی ہے, کامیاب نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے آپ کی بڑی پریئر ریکویسٹ ہو, اپنے سیمینار اٹینڈ کرتے ہو, آپ میں سے کچھ ہو کنونشن کے اندر جاتے ہو, کروسٹ کے اندر جاتے ہو, لائیو میٹنگ سنتے ہو, پر پھر بھی آپ کی دعا سنی کیوں نہیں جا رہی؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے, ہمارے اندر کمی ہے. اور خدا کا کلام پاک آج ہم سے بات کرتا, پھر سے غور سے سنیے گا. اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. آج ہمیں اپنے بدن کے اندر سے, اپنے دل سے کیا کرنا ہے, ہمیں بدی کو کیا کرنا ہے, دور کرنا ہے. اور جو سب سے پہلا ہم پوائنٹ پر بات کریں گے, اور پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, گناہ آپ کی دعاؤں کو کیا کرتا ہے, روکتا ہے. ہاللیلویا. گناہ کیا کرتا ہے, آپ کی دعاؤں کو روکتا ہے. اب گناہ کیسے کرتے ہیں؟ اب سوچتے ہوں گے کہ میں تو بڑا اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہوں, پر بائبل بیان کرتی ہے کہ صرف ایک ہی ایسی شخصیت ہے, ایک ہی ایسی ہستی ہے جس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ ثابت نہ کر سکا, اور وہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح. ہاللیلویا. ہاللیلویا. باقی ہر ایک جو زندگی ہے, چاہے تو کوئی بھی کیوں نہیں ہے, چاہے بڑے سے بڑا خادم کیوں نہیں ہے, پروفٹ کیوں نہیں ہے, پاسٹر کیوں نہیں, بشپ کیوں نہیں ہے, پر ہر ایک کی زندگی کے اندر کیا ہے, جانے انجانے میں وہ خطا کر بیٹھتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, پاک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم چرچ میں جاتے ہیں, پر پھر بھی ہماری زندگیوں کے اندر کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہماری دعائیں رک جاتی ہیں. دانیال نے بھی دعا کی اور اس کی دعا بھی رک گئی, آسمان سے اوپر نہ جا سکی. کچھ ایسی ایول اسپرٹ ہوتی ہیں, کچھ ایسی بدروہیں ہوتی ہیں جو ہماری دعاؤں کو کیا کرتی ہیں, روکتی ہیں. ہاللیلویا. اور ہمیں کیا کرنا ہے, آج ہم اس کا حل کو سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس حل پر, اگر اس باتوں پر ہم عمل کریں گے تو ہماری دعا کیا ہوگی, ہماری دعا رکے گی نہیں, کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ہماری دعا کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور بائبل بھی بیان کرتی ہے, اگر تیری زندگی کے اندر, اگر تیرے بدن کے اندر اگر بدی ہوگی, اگر تیرے دل کے اندر بدی ہوگی, تو خداوند کبھی تیری نہیں سنے گا. ہاللیلویا. بلند آواز سے بولا کرے ہاللیلویا. اگر آپ کے دل کے اندر بدی ہوگی تو خداوند کیا کرے گا, آپ کی نہیں سنے گا. اگر کسی کے بارے میں اگر ہم بری سوچ میں رکھیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے, بدی ہے. ہم گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے, ہم بدی کو چھوڑنا نہیں چاہتے, ہم بدی کو اس کے اندر لپٹ جاتے ہیں, اپنے سپنے سے دور ہی نہیں کرتے. تو پھر اسی وجہ سے میرے عزیزوں, ہماری جو دعا کا جواب ہے وہ رک جاتا ہے. ہم گناہ کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں, اور پھر ہم کیا کہتے ہیں, خدا ہماری دعا کا جواب کیوں نہیں دے رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا, ہم گناہ کے اندر, بدی کے اندر کیا کر رہے ہیں, اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہم سیکھیں گے, خدا کے کلام پاک کو رد کرنا. پہلا جو پوائنٹ ہے یہ ہے, گناہ آپ کی دعاؤں کو روکتا ہے, اور دوسرا یہ ہے خدا کے کلام کو رد کرنا. دوسرا پوائنٹ کیا ہے, خدا کے کلام کو رد کرنا. خدا کے کلام کو جب آپ رد کرتے ہیں تو آپ کی دعائیں کیا ہو جاتی ہیں, رک جاتی ہے. اور آپ سوچتے ہوں گے, میں نے خدا کے کلام کو کبھی رد نہیں کیا.
जब भी कोई भी खुदा का खादम आता है तो मैं उसे अपने घर के अंदर उतारता हूँ। मैं कहता हूँ आइए खुदा के खादम को मैं दावत देता हूँ। मैं खुदा के कलाम को रद्द नहीं करता, पर आइए बाइबल में से ये भी सीखेंगे कि कलाम पाक को किस तरह हम रद्द करते हैं। हम क्या करते हैं? हम वर्शिप करते हैं। हम सब क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, हम दुआएं करते हैं। चर्च में से, जमात में से कोई दुआ करता है, कलीसिया में कोई दुआ करता है, प्रस्तुत हम करते हैं, हम अच्छी दुआएं करने वाले हैं, पर फिर भी हम कहते हैं हम तो खुदा के कलाम को रद्द नहीं करते। पर अगर वो खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, जो चर्च में कुछ और होते हैं, दुआएं करते हैं, और उसके बाद जब इस जगह से चले जाते हैं, उनका जो रवैया होता है वो चेंज नजर आता है, मुख्तलिफ नजर आता है। इस जगह पर हम अपने आप को बड़ा बादशाह समझते हैं, हम अपने आप को बड़ा नीट एंड क्लीन समझते हैं। हम समझते हैं कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है। हम इस जगह पर आएंगे, बड़े अपने आप को परफेक्ट साबित करेंगे, बड़े इस कदर हम अपने आप को दुआ करेंगे, बुलंद आवाज से दुआ करेंगे। और कभी इत्तेफाक उनके घर के अंदर जाने का, चाहे वो टीम के अंदर मुझे, क्योंकि घर वाले बताएंगे पासा रख के कार दुआ करता ही नहीं था, कार तो बाइबल में ही पढ़ रहा। मतलब क्या है कि हम चर्च के अंदर आते हैं तो आकर उसके कलाम को सुना, और सुनने के बाद ही क्या कर देते हैं? हम खुदा के कलाम को रद्द कर देते हैं, हम ठुकरा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी दुआएं क्या हो जाती है? रुक जाती हैं। और बिल्कुल ऐसा भी होता है जब कलाम पाक को सुनते हैं, दुआएं करते हैं, और उसके बाद क्या होता है? कलाम कुछ टाइम तक हमारी जिंदगी के अंदर रहता है, और उसके बाद उसका जो असर होता है वो चला जाता है। इब्लीस उसे हमारे अंदर जड़ पकड़ने नहीं देता, और इस कलाम पाक को इब्लीस हमारे पास ही होता है, और वो क्या करता है? उसी कलाम को क्या करता है? छीन लेता है। और बिल्खुसूस ये जो बात, जो क्वालिटी पाई जाती है, मैं बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहूंगा, बेशक इसको बुरा भी लगे, ये चर्च टीम में बिल्खुसूस पाई जाती है कि जब हम चर्च के अंदर होंगे बड़े परफेक्ट, और उसके बाद क्या होगा? हम दुनिया के मजाक करना शुरू करेंगे, एक दूसरे के बारे में गलत बातें करना शुरू कर देंगे। ये इब्लीस की अलामत है। बाइबल बयान करती है जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है। अगर आप गुनाह करते हैं, बाइबल बयान करती है, बाइबल क्या बयान करती है? जो शख्स गुनाह करता है, जो बेटी या बेटा गुनाह करता है, वो क्या है? इब्लीस से है। और इब्लीस क्या है? वो शुरू से क्या करता आया है? गुनाह करता है। हालेलुया! वो शुरू से गुनाह करता आया है, और वो ये चाहता है कि खुदा के कलाम को कोई कबूल ना करे, बल्कि ये जो खुदा के कलाम पाक को सुनकर क्या करे? अपनी जिंदगी से निकाल दे। हम चर्च के अंदर आते हैं, दुआएं करते हैं, जैसे चर्च से खत्म, उसके बाद प्रोसेस की गई, खत्म हो गया, उसके बाद जो है, जो सिगरेट पीने वाले सिगरेट को पीना शुरू कर देंगे, अगर मजाक करने वाले हैं वो मजाक को करना शुरू कर देंगे। हमें अपने आप को चेंज करना है। हमें चर्च के अंदर जो है, जब हम इकट्ठे होते हैं, ये हमारी स्पिरिचुअल क्लास है, हमारी रूहानी क्लास है। और जिस तरह आप एक रूहानी क्लास के अंदर आते हैं, अब चर्च में आने वाले हैं, आपकी जिंदगियों से, आपके चाल चलन से, आपके किरदार से मसीह का किरदार नजर आना बहुत जरूरी है। आमीन, आमीन। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करना चाहूंगा, स्पेशली टीम बड़े गौर से सुनिएगा, जितनी टीम है ये सब कलीसिया करेगी। हालेलुया! अगर हम खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लेते, ये हमारा क्या है? एक रूहानी स्कूल है। हालेलुया, हालेलुया। एक खुदा के खादम ने एक मिसाल दी, बड़े गौर से सुनिएगा। एक जो शख्स था वो बड़ा शरीफ इंसान था, पर वो था बहुत गरीब। उसके घर के दरवाजे पर एक गधा बंधा हुआ था, उसने बच्चा लेकर पाला, वो बड़ी गुर्बत के अंदर जिंदगी बसर करता था। और उसने देखा, उसने कहा मैं बड़ा इससे प्यार करता हूँ। अब वो जो उसका गधा था वो घर के बाहर कड़ बंधा होता था, अब वो इस कदर उससे प्यार करता, उसके पास औलाद भी ना थी, पर उसका जो जितना रोजगार था वो गधे की वजह से वो चलता था। वो छोटा था, पहले उसने उसके ऊपर छोटे जो गधा था उसके ऊपर रेडी रखी होती, वो चीजें को बेचने जाता, बेच कर आता, पर वो खुद गधे पर ना बैठता। क्यों? क्योंकि ये अभी बच्चा है, इसके ऊपर पहले इतना वजन है, पर मैं इसके ऊपर नहीं बैठूंगा क्योंकि अब ये बच्चा है। वो इस कदर उससे प्यार करता, मोहब्बत करता, उसको कभी स्टिक न मारता। और वो जो गधा भी था, पर उसके अंदर एक क्वालिटी पाई जाती थी, जब वो गली के बाहर बांधा जाना, उसको बांधा जाता था, तो कोई भी शख्स का उस जगह से गुजर होना, तो जो लोग थे इलाके वाले वो कंप्लेन करते थे, वो
थे कि आपने जो गधा रखा है, इसके ये जो है हमें बड़ा डिस्टर्ब करता है, तंग करता है, आप इसे समझाओ। ये क्या कहते हैं पंजाबी जिसे कहते हैं, ये गलती मारता है, टांग मारता है, हमारे बच्चों को मारता है। कुछ ना कुछ जो भी होते इलाके वाले, वो शाम को एक दो कुछ जरूर उसके घर के अंदर कंप्लेन पहुंची होती और कहते कि अपने गधे को समझाओ। अब वो सोचता, परेशान था कि ये गधा है, ये जानवर है, मैं इसे कैसे समझाऊं, इसको तो समझ नहीं है। अब वो जो बात थी, वो जो कहते हैं इलाके का जो चौधरी कह ले, जो पिंड का चौधरी कह ले, गांव का चौधरी कह ले, कोई काउंसलर या नाज़िम कह ले, उसके तक वो बात पहुंची। वो शाम को पंचायत होगी और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप इसको क्या करो, बड़े गौर से सुना है अपने मिसाल को, सीखेंगे, आपको एक सबक मिलेगा। उसने कहा कि आप इसे क्या करो, एक जगह पर एक स्कूल है, उस जगह पर इसको क्या की जाती है, ट्रेनिंग करवाई जाती है। उस जगह पर जब ट्रेनिंग करवाई जाती है, आपका जो ये गधा है इसको इंसान बनाया जाएगा। ये वैसे तो गधा रहेगा पर इसको सिखाया जाएगा, इसको तरतीब सिखाई जाएगी। उसने कहा ठीक है। वो 2 साल 3 साल तक वो ट्रेनिंग करने के लिए गया और उसके बाद जब फिर आया, दरवाजे पर बांधा गया, फिर उसने क्या की, फिर उसने वही हरकत की। पंजाबी जो कहते हैं लात मारी, गलती मारी फिर उन्हें। अब वो फिर बड़े परेशान हुए और फिर उसके पास दरवाजा नॉक किया। उसने कहा कि ये यार ये फिर से ऐसी हरकत कर रहा है। वो कहते उससे, वो मालक से कहता है, भावे 2 साल तू सबक लेके क्लास लेके, पर ਜਿਹੜੀ तेरी नेचर है, तेरी हरकतें उंज दी हैं। क्यों? क्योंकि जो तेरी नेचर है, गधे की नेचर क्या है, वो गलती जरूर मारेगा। पढ़ने के बाद, सीखने के बाद भी 2 साल ट्रेनिंग मिली, पर उसका जो किरदार था वैसे का वैसे ही रहा। और इसी तरह स्पेशली ये चर्च की टीम के लिए बात है, स्पेशली अगर हम चर्च में आते हैं, अगर हम दुआएं करते हैं, अगर हम दुनिया के सामने अपने आप को पेश करना है, तो अगर हम खुदा के कलाम को सुनकर भी हम खुदा के कलाम को रद्द कर देते हैं, अपने अंदर प्रैक्टिकल नहीं करते, अपनाते नहीं, 2 साल हो गए, 4 साल, 50 साल हो सके, जितनी आपकी उम्र है, आप उतने साल से आप चर्च जा रहे हो, पर हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली क्यों नहीं है? बाइबल बयान करती है, मैं आपको एक मिसाल देना चाहिए, बात बड़ी सख्त है पर बाइबल के अंदर लिखी है। अगर जो शख्स, अगर हम कोई गुनाह करते हैं, गुनाह करने के बाद अगर कोई भी उसको अंदर ले जाता है, बाइबल के मुकद्दस के अंदर लिखा है, कुत्ते के बारे में बात बताइए। कुत्ता जो है जानवर है, और जो कुत्ता है ये क्या करता है, उगलता है, गुनाह को उगलता है, उगलने के बाद क्या करता है, और उसी जो उल्टे की होती है, जो गंद उसने बाहर निकाला होता है, वही क्या करता है, दोबारा वापस अपने अंदर क्या करता है, ले लेता है। तो इसी तरह कोई भी शख्स है जो खुदा ने जिसे बनाया है, अगर हम गुनाह करके, अगर चर्च में आकर भी अगर हमारा रवैया चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब यह हम खुदा के कलाम को क्या करते हैं, हम रद्द करते हैं। और हम किसकी मानिंद हैं? मैं शर्म के साथ कोई बात कर रहा, अगर जो शख्स किसी के लिए, स्पेशली आप पे उंगली नहीं कर रहा, मैं अपनी बात ही कर लेता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा, किसी ने फील नहीं करना। अगर मैं शख्स, अगर मैं आपको बताकर अगर ऐसा काम करूंगा, तो ये कलाम मेरे लिए भी सेम उतना ही है। तो बाइबल कहती है कि जो शख्स ऐसा करता है वो कुत्ते की मानिंद है। पर हमें क्या करना है, उसके कलाम को रद्द नहीं करना, बल्कि उसके कलाम को क्या करना है, अपनी जिंदगी के अंदर लेना है। अपने इस खुदा के कलाम पाक को रोकने की कोशिश करता है, अपने इस चाहता है खुदा का जो मंसूबा है, प्लान है, वो पूरा ना हो। वो यीशु मसीह के पास गया, अगर तू खुदा का बेटा तो फरमा ये पत्थर रोटी बन जाए। कि यीशु के कहने में पत्थर रोटी नहीं बन सकता था, रोटियों का ढेर लग सकता। हालेलुया। ऐसे आप ईमान रखते हैं? ईमान रखते हैं तो तालियां बजा दे, खुदा आपको बचाए। और हम खुदा के कलाम पाक को कैसे रद्द करते हैं, आइए बाइबल मुकद्दस के अंदर देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमसे क्या बात करती है। इमसाल की किताब उसका 28 बाब और उसकी 9 आयत को हम पढ़ेंगे। बड़े गौर से सुनिएगा, ये कलाम आपके लिए है और मेरे लिए भी है। हालेलुया। इस कलाम पाक में कुछ यूं मरकूम है, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। आमीन आमीन। जो कान फेर लेता है, जो कान क्या करता है, फेर लेता है, खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है और अपना ध्यान क्या करता है, दूसरी तरफ फेर लेता है। बल्कि खुदा के कलाम पाक में तो ये लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे क्या हो, इसी का ध्यान हो। पर इसी का पर तो लिखा है कि शरीयत
शरीयत को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। हम क्या करते हैं, हम शरीयत की बात को, शरीयत के इस कलाम पाक को अगर हम नहीं सुनते, इस पर अमल नहीं करते, तो ये क्या है, नफरत अंगेज है। हालेलुया। हमें क्या करना है, इस कलाम को रद्द नहीं करना बल्कि अपनी जिंदगी के अंदर लेना। हालेलुया। अब मेरे साथ कहिए, खुदा मुझे सुनने वाले कान, बुलंद आवाज सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता कर। और अपनी किस तरह खुदा के कलाम पाक को हमारी जिंदगी के अंदर रोकता है, वो इस तरह से रोकता है, हम लड़ाई करते हैं, चर्च में भी आते हैं, हम लड़ाई भी करते हैं, हम झूठ भी बोलते हैं, हम धोखा भी करते हैं, हम चोरी भी करते हैं, गुरूर भी करते हैं, तकब्बर भी करते हैं। और जब हम बुरे काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम खुदा के कलाम पाक को रद्द करते हैं। हालेलुया। ऐसा ही है। हालेलुया। तो अब से हमने क्या कर रहे हैं, पहले हमने क्या सीखा, गुनाह आपकी दुआओं को रोकता है, साथ साथ अब रहेगा दूसरा पॉइंट क्या है, खुदा के कलाम पाक को रद्द करना। और तीसरा जो हम सीखेंगे, क्यों हमारी दुआ का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि हम बुरी नीयत से मांगते हैं। आमीन। क्यों हमारी दुआ का जवाब नहीं मिलता, हम कैसे मांगते हैं, हम बुरी नीयत से मांगते हैं। 100% में से एक खुदा के बड़े कादम, एक बड़े स्कॉलर ने, बाइबल के डॉक्टर ने इस बात को बयान किया, और ये सच्चाई भी है, आप भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, एग्री होंगे कि 100% में से 98% जो लोग चर्च के अंदर आते हैं वो अपनी जरूरत के मुताबिक आते हैं। अब जब भी कभी चर्च आएंगे, कोई भी शख्स है, कोई भी क्यों नहीं है, चाहे मैं क्यों नहीं हूं, कोई भी शख्स अगर चर्च आता है तो सबसे पहले क्या होता है, वो अपनी ख्वाहिशात को लेकर आएगा। सबसे पहले उसकी ख्वाहिश क्या होगी, हम मांगते हैं, क्यों हम मांगते हैं और पाते नहीं, इसलिए क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बुरी नीयत से मांगते हैं। हम खुदा से कहते हैं, खुदा मुझे पैसे दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे औलाद दे दे, मुझे बच्चे दे दे, मेरे कारोबार को ब्लेस कर दे। और हम हम उस वक्त हम चर्च जाते हैं, हम जब क्या हो, अक्सर इस जगह पर गौर सुनिएगा, अक्सर क्या करते हैं, पास्टर जी मैं इसलिए आपके पास आई हूँ, मेरे मुंडे ने मसला हो, क्या बाजी मसला हुआ है, इन्होंने बदरुआ चपड़ दिया, बदरुआ ने इसको पकड़ लिया है, इसका एक्सीडेंट हो गया है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये बीमारी है, ये इसको क्या है, इसको ये कामयाब नहीं हो रहा, इसको कारोबार जो भी देते हैं ये कामयाब होने की बजाय नाकाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम खुदा के आप इसलिए है क्योंकि हम अपनी ख्वाहिश को लेकर है, अपनी मुनाजात को लेकर है, अपनी दुर्खास्त को लेकर है। हम उस वक्त हमने खुदा को क्या समझा है, जिस तरह एक सुबह बच्चा उठकर जब दुकान पर जाता है, दुकान वाले से जाकर एक ही चीज मांगता है, वो क्या मांगता है, या मांगेगा ब्रेड मुझे दे दो, मुझे अंडा दे दो, क्यों है, सर्दी इसी चीज की जरूरत है। हमने खुदा को क्या समझते हैं, एक मॉल की तरह समझते हैं, एक बड़ी मार्केट की तरह समझते हैं। किस जगह पर जाएंगे, खुदा से ये चीज ले ली, खुदा मुझे बरकत दे दे, बरकत जेब में डाली, और आगे पैसे मांगे, पैसे जेब में डालिए, और हम आगे शिफा को मांगा, जेब में डाली, और आगे इतनी शॉपिंग कर ली, बस खुदा नो के भाई। हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारी क्या है, हमारी अपनी बुरी ख्वाहिशात है। बाइबल इसलिए बयान कर, तुम मांगते हो बातें नहीं, क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो, हमारी अच्छी ख्वाहिश नहीं है। अगर कोई भी रास्तबाज शख्स अगर मांगता है तो अच्छी नीयत से मांगता है, वो खुदा से ये कहता है, खुदा मुझे क्या कर, खुदा मुझे बरकत दे, मैं दुनिया की धन दौलत नहीं मांगता, मैं मांगता हूँ सिर्फ तुझे मांगता हूँ, मुझे हिकमत तो दिलाई दे, मुझे अकल और फहम की रूह अता कर, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं और मेरा खानदान तेरी इबादत, तेरी प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो हिकमत की बातें मांगेगा, दुनिया की ख्वाहिशात नहीं रखेगा। याद रखे, अगर आप दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे, दुनिया की चीजों के पीछे अगर आप भागेंगे तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर हम मसीह के पीछे भागेंगे तो दुनिया की हर एक चीज होगी वो हमारे क्या पीछे भागेगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए बाइबल मुकद्दस के अंदर ये भी हम देखेंगे कि जो बुरी नीयत से मांगते हैं उनके लिए क्या लिखा है, और देखेंगे ये लिखा भी है या नहीं लिखा गया। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे से मिसाल निकाल सकते हैं। यकूब का आम खत और उसका 4 बाब और उसकी 3 आयत से लेकर 5 आयत तक हम खुदा के कलाम पाक में से तिलावत को सुनेंगे। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी
ऐशो इशरत में खर्च करो। ऐ जना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है जिस रूह को उसने तुम्हारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरज़ू करती है जिसका अंजाम हसद हो? आमीन, हालेलुया। हमें क्या मिला? इसका जवाब मिला। हालेलुया। ये क्या है? आज हम सीख रहे हैं कि हमारी दुआ का जवाब क्यों नहीं मिलता। खुदा कहता है जो तेरे अंदर कमी है उस कमी को क्या कर, तू दूर कर, तेरी दुआ का जवाब भी मिलेगा और मैं क्या करूंगा, तेरी दुआ का जवाब भी दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मत ये समझा करें सबसे पहले कि आपका खुदा आपकी सुनता नहीं। आपका खुदा सुनता है, आपका खुदा जवाब भी देता है, आपका खुदा बात भी करता है, आपका खुदा छूता भी है। पर वो कब आपको छूता है, कब आपके बात का जवाब देता है? जब आप उसको पुकारते हैं। हम कब उससे पुकारते हैं? हमारी दुआएं कैसी होती है? खुदावन तेरा शुक्र अदा करना या कारनी खुदा सारा दिन आपने मेरी हिफाजत निगरानी की, रात को मीठी नींद देना खुदा। खुदावन मेरे बच्चों पर बरकत, मेरे खानदान पर बरकत। खुदा मैंने अपने बेटे की शादी करनी है, बेटे को जॉब लगवाना है, अपने घर को तमीर करना है, मुझे ये चीजों की जरूरत है, मेरे बच्चे के पास बाइक नहीं है, मेरे बच्चे को ये बीमारी है, मेरे बच्चे को ये तकलीफ है, खुदावन मुझे अता कर। बाइबल क्या बयान करती है? तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। मांगा क्या? खुदा का सिर्फ शुक्र अदा किया, खुदा को मांगा ही नहीं, उसको बुलाया ही नहीं, उसको अपनी जिंदगी के अंदर उतारा ही नहीं, बल्कि बाइबल तो बयान करती है तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में क्या है? बसा हुआ है। खुदा का रूह हमें बसता है, पर हमें क्या करने की जरूरत है? हमें खुदा को पुकारने की जरूरत है और कहने की जरूरत। खुदावंद हम दुनिया की ऐशो इशरत को नहीं, बल्कि हम क्या करना चाहते हैं? हम तुझे हासिल करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर जो उसका ही था, वो मिस्सू लेने वालों का सरदार था, धन दौलत पैसा भी बहुत था, नाम भी बहुत, शोहरत भी बहुत, और बहुत सारे उसके नीचे अंडर उसके काम करते थे। मिस्सू लेने वाला वो सरदार था, उसके नीचे भी बहुत सारे काम करते थे। पैसा होने के बावजूद भी वो यीशु की देखने की और उससे मिलने की क्या करता? तड़प करता है। यीशु ने भी क्या किया? उसके दिल पर क्या की? नजर की कि इसके पास ये सब कुछ है, पर ये क्या करता है? मुझे पुकारता है, मुझे बुलाता है। और यीशु ने भी क्या किया? उसके लिए जा रहा और उसके लिए क्या हो गया? रुक गया। हालेलुया। यीशु क्या होगा? उसके लिए रुक गया। और कैसी बात है, आप इमेजिन कीजिए, सोचिए इस बात को कि यीशु कभी सकई से मिला नहीं, यीशु ने कभी सकई को देखा नहीं, पर वो उसको जानता है। हालेलुया। क्योंकि उसके कलाम पाक में लिखा वो हमें बाय नेम जानता है, वो हमारे नाम को भी जानता है कि इसका नाम दाऊद है, इसका नाम नुमान है, इसका नाम असलम है। वो जानता है सबके नाम, वो आपको बाय नेम जानता है। वो उसकई को भी जानता था और उसकई के लिए रुक गया। प्यासा उसके पास है, पर उसके अंदर ख्वाहिश किस बात की है? तड़प किस बात की है? धन दौलत की नहीं, ऐशो इशरत की नहीं, बल्कि इस बात की तड़प करता है कि यीशु को देखने की। यीशु ने भी उसके क्या की? दिल पर नजर की, देखा कि सकई क्या है? मुझे देखने का मुंतजिर है। और सकई के लिए भी यीशु ने उसको ये नाम पुकारा, कहा आए सकई जल्द उतरा, मुझे आज तेरे घर जाना है। और बाइबल बयान करती है यीशु सकई के घर के अंदर गया और सकई ने क्या कहा? जिसका मैंने ना हक लिया है उससे मैं क्या करता हूँ? चुगना अदा करता हूँ। सुनिए बात सुन, मैं चुगना अदा करता। अब चुगना अदा कर रहा है, क्या कहते हैं? जिससे मैंने ना हक लिया मैं उसे चुगना 4 गुना क्या करता हूँ? वापिस करता हूँ। अब वो वापिस कर रहा है, किस बना पर कर रहा है? अब यीशु मेरे पास आ गया है, मेरे पास सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा यीशु मुझे दुगना ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए तालियां हो जाएगी। वो लिखा है, आए जिना करने वाले हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से क्या करना है? दुश्मनी करना है। हालेलुया। हम दुनिया से दोस्ती रखते हैं। अब चर्च नहीं आए, पास्टर जी फलां साढ़े घर वाले से। हालेलुया।
اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیا ہے؟ پھر سے پڑھتا ہوں آپ کے لیے، غور سے سننا ہے. اے زنا کرنے والوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ ہاللیلویا. میرے گھر فلاں عزیز آ گیا، میں اپنی بات کر لیتا ہوں. میرے گھر میرا فلاں ماموں آ گیا. اگر وہ آ گیا، اگر میں نے اس کو ترجیح دی تو اس کا مطلب ہے میں اپنا دشمن کس کو بناتا ہوں؟ کس کو دشمن بناتا ہوں؟ آپ کے گھر اگر آپ کو کوئی عزیز آ گیا، آپ رک گئے، تو اب چرچ میں اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے دشمن کس کو بنا لیا. تو پھر خدا کیا آپ کو برکت دے گا؟ خدا آپ کو بلیسنگ دے گا؟ خدا آپ کی دعا کا جواب دے گا؟ آپ نے کیا کر دیا؟ اپنا دشمن جس نے ہمیں دینا ہے، ہم نے کیا کرنا؟ اسی کو دشمن بنا لیا. ایسی بات ہے نا. اگر ہم نے کسی سے پیسے لینے ہوں، اپنے دیکھو سے واپس لینا ہو، کہتے پیار نہ کڑوا دو، اگر ماڑی کو آکڑ دی نہیں جڑے آئے وہ بھی چلے جائے. ایسی بات ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں؟ مسکے مسکرائے، یار تیری مہربانی دے دی، ہاتھ جوڑنے. ایسی بات ہے نا. پر اگر ہم اپنے خدا سے دشمنی کر بیٹھیں گے تو کیا ہمیں یہ سب کچھ ملے گا؟ کبھی بھی نہیں ملے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کس کو ترجیح دینی ہے؟ یہ نہیں کہنا بس اب گیس چلی گئی، اس سے تھوڑی لیٹ ہو جانے آئے نہیں، اس کو روٹی پکا یہ پتہ نہیں پھر بات سے. ہاللیلویا. وہ روٹی آپ کو مل جائے گی، پر یہ جو روٹیاں برکت ہے آپ کھو دیں گے. ہاللیلویا. آپ جاگ رہے ہیں؟ ہاللیلویا. اور لکھا ہے، بس کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بائبل مقدس ہے بے فائدہ کہتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بائبل مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ نہیں کہتی. یہ کیا کرتی ہے؟ سچ بولتی ہے. ہاللیلویا. یہ سچا کلام ہے. اور بائبل بھی یہ کہتی ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی کیا کرے گی؟ تمہیں آزاد کرے گی. اور لکھا ہے جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے، کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسرت ہے. جس نے ہمیں بنایا ہے، کیا وہ ہمارے اندر ایسی آرزو کیا کرتا ہے؟ وہ پیدا کرتا ہے جو ہمارے اندر کیا کرتی ہے؟ حسرت پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر بری باتیں کرتی ہے. خدا نے ہمیں بنایا، یہ سب اعضاء کے جسم کے سب پرفیکٹ ہے، سارے سچ بولتے ہیں. ہاتھ کو اگر کسی چیز کو چھوئیں گے نا، تو ہاتھ اگر کوئی ٹھنڈی چیز ہوگی آپ کو بتائے گی، گرم ہوگی جلدی سے پیچھے کرنا، کیونکہ یہ کیا گرم ہے، چھالے بن جائے گی. اس کو آگے کریں، یہ سچ بتا رہا ہے. پر ہماری جو خواہشات ہیں، ہمارے جو ذہن ہے، سوچیں ہیں، یہ کیا کرتی ہے؟ ہمیں بری طرف لے کر جاتی. خدا نے جتنے اعضاء بنائے ہیں سب پرفیکٹ بولتے ہیں، پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کا استعمال کیا کرتے ہیں؟ غلط کرتے ہیں. جس طرح بائک چلانے کے لیے بہت سارے لوگ وننگ کرتے ہیں، اس کے بعد روڈ پر سے کوئی اکٹھا بھی کرنا پڑتا ہے. ایسی بات ہے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد. سو پھر اس کے بعد ہم نے پہلا پوائنٹ کیا سیکھا؟ ہم نے ساتھ رہنا ہے. اس سال جو ہم سیکھیں گے، ہم ٹیچنگ بھی رہیں گے، ہم سیکھیں گے بھی. ہاللیلویا. اور یہ کہ جو سال ہمارا سیکھنے کا سال ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا سال ہے. ہاللیلویا. اور میں چاہتا ہوں آپ کی زندگیوں کے اندر سے گواہیاں پیدا ہو. ہاللیلویا. جب خدا سے دعا کرتا ہوں اور کہتا ہوں خدا آپ اپنی موجودگی کو ظاہر کریں تاکہ کلیسیا کے اندر گواہیاں پیدا ہوں، لوگ دعاؤں کا جواب دیں. پر خدا کہتا ہوں ان کو دعاؤں کے تعلق سے سکھا دیا. ہاللیلویا. پہلے ہم نے کیا سیکھا؟ گناہ آپ کی دعاؤں کو روکتا ہے، نمبر 1. دوسرا کیا ہم نے سیکھا؟ خدا کے کلام پاک کو رد کرنا. تیسرا ہم نے کیا سیکھا؟ کیوں ہماری دعا کا جواب نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم بری نیت سے مانگتے ہیں. اور ہم چوتھا دیکھیں گے خدا کے کلام پاک میں سے بھی خدا پر شک کرنا. ہاللیلویا. اور موجود ہے خدا پر شک کرنا. سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگیوں کے سے اندر سے، اپنے ذہنوں میں سے شک کو کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے. پاسٹر کے پاس، کس کے پاس ہم گئے؟ شفا نہیں. اس کے پاس ہے، شفا نہیں. اس چرچ میں گئے، شفا نہیں. چوتھے چرچ میں گئے، شفا نہیں. کنونشن میں گئے، کروسٹ میں گئے، شفا نہیں. کیوں شفا نہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر کیا ہے؟ شک کرتے ہیں. کس پر شک کرتے ہیں؟ شفا خدا نے نہیں دینی، کس نے دینی ہے؟ اور ہم اسی خدا پر کیا کرتے ہیں؟ ہم شک کرتے ہیں. بائبل مقدس کے اندر ہم ایک معجزات کو دیکھتے ہیں. یسوع المسیح نے اختیار دیا. کس کو اختیار دیا؟ پترس کو دیا کہ پانی پر چلنے کا. پانی پر چلنا شروع ہوا. جب اس نے نہروں کو دیکھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے اندر دیکھا کہ میں کیا ہوں؟ پانی پر چل رہا ہوں. پانی جو ہے میرے لیے فرش بن چکا ہے، ایک روڈ بن چکا ہے، میں پانی پر چل رہا ہوں. اور اس نے جب دیکھا اور اس کے اندر کیا ہو گیا؟
शक आया। उससे पहले भी उसने शक किया, पानी पर चला, खुदा ने उसे इख्तियार दिया, पावर दी मेरे और आपकी यीशु ने, फिर उस पर शक आया। शक की वजह से क्या होगा, वो डूबना शुरू हो गया। और इसी वजह, शक की वजह से क्या होता है, हम शिफा को हासिल नहीं करते। चर्च बदलने से नहीं, बल्कि अपने आप को बदलने से क्या होगी, हमें शिफा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और इसके साथ खुदा के कलाम पाक में से हम देखेंगे, आइए जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालेंगे याकूब का आम खत और उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत से लेकर 7 आयत में से हम खुदा की कलाम पाक में से तिलावत करेंगे। याकूब का आम खत, उसका पहला बाब 5 से लेकर 7 तक। क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है, जिस रूह को उसने तुम्हारे अंदर बसाया है, क्या ऐसी आरज़ू करती है जिसका अंजाम हसद हो? वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करे, मगर फरोतनों को तौफीक बख्शे। बस खुदा की ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या करना है, इब्लीस का जब हम मुकाबला करेंगे तो वो क्या होगा, हमसे भाग जाएगा। इसके साथ हम एक और हवाला देखें, याकूब का आम खत, उसका पहला बाब 5 से लेकर 7 तक। पहला बाब, याकूब का पहला बाब, उसकी 5 आयत से 7 आयत तक। बस अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। शक करने वाला क्या है, लहरों, समंदर की लहरों की मालिक है, और वो ये कभी ना समझे कि मुझे खुदा से क्या करेगा, खुदा से कुछ मिलेगा। अब कभी खुदा से पर तवक्कुल ना कीजिए। अगर हम उसकी कलाम पर, अपने खुदा पर अगर हम शक करते हैं, हमारे अंदर अगर शक है, ईमान नहीं है, तो हमें क्या होगा, हमें कुछ भी हासिल हम नहीं कर सकेंगे। हमें अपने अंदर से क्या करना है, शक को निकालना है। अपने अंदर से ये जो बुरी स्पिरिट है, हमें खुदा पर ट्रस्ट करने नहीं देती, यकीन करने नहीं देती, भरोसा करने नहीं देती, हमें क्या करना है, अपनी जिंदगी से निकालना है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, ईमान सुनने से पैदा और सुनना मसीह के कलाम में से। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, अगर तुम्हारे अंदर रई के दाने की मानिंद भी ईमान हो, हमारे अंदर क्या है, रई के दाने की मानिंद भी ईमान होगा, तो हमारा खुदा क्या करेगा, हमें बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, अपने शक को भी क्या करना है, अपनी जिंदगी से निकालना है। और इसके साथ ही हालेलुया, खुदा इस कलाम पाक के वसीला से आपको बरकत दे। कुछ और पॉइंट्स है, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। और सबसे पहले आपने सीखना